temperature. So bete, this is a paper and you know that it is a combustible substance. This I have taken a filter paper. Okay. Now, let me okay. Now, what I am doing, I am just burning the candle. Now you can see this candle is burned, bete. And I have taken a dry filter paper, which is a combustible substance. Okay. So it catches fire when it is dry very easily. It is catching the fire as it is attaining its ignition temperature fast. But when I am taking another filter paper now, and I am dipping this filter paper in water. This you know very well also. So you can see it will not catch fire because its ignition temperature is not reached. It is not catching fire easily. ठीक है बेटे, क्योंकि जो इग्निशन टेम्परेचर है इसका वो इस वाटर ने हाई कर दिया और तब तक ये फायर कैच नहीं करेगा जितना वाटर ने हाई किया है उतना ये अटेन नहीं करेगा. ठीक है बेटे. सो यू सी is not catching fire because the ignition temperature get higher and it is not attaining the ignition temperature now. Okay, so if the substance have to be burned, it should attain the ignition temperature, वो temperature जिसमें ये fire catch कर ले. जब तक ये ignition temperature reach नहीं करेगा तब तक ये fire catch नहीं करेगा. और ये 2 minutes में इसने fire catch कर ली थी because it has attained the ignition temperature. So in activity, what you have used? You have used a candle. Then you write yourself the filter paper and what we have seen, and you can take gas stove or water. What is our observation? That a dry filter paper catches fire so quickly because it attains its ignition temperature very quickly. But when you are dipping this filter paper into water, it will not catching the fire easily as it is not attaining the ignition temperature quickly. Okay, bete? So this is the basic result of this experiment कि जब तक किसी भी substance को उसका ignition temperature नहीं मिलता, then it is not catching the fire. It will catch the fire when it is attaining the ignition temperature. Okay, so let us finish our chapter and move ahead. So yesterday, the day before yesterday on Saturday, we have finished the flame. Okay, so one important question is asked from the flame that जब goldsmith ornaments बनाता है, whenever the goldsmith used, ठीक है, तो वो मेल्ट करने के लिए गोल्ड पीसेस को कौन सी जोन कैंडल की यूज करता है? आपने कभी देखा होगा, कभी आप दूसरे के पास गए होंगे और जो ऑर्नामेंट्स बन रहे होते हैं तो
तो वन इज अ ब्लो पाइप देयर, और ब्लो पाइप की हेल्प से वो ब्लो कर रहा होता है फ्लेम से और गोल्ड की ऑर्नामेंट की तरफ. ठीक है. द क्वेश्चन इज आस्क्ड which zone of the flame is used, which zone of the flame is used by goldsmith to melt gold or in the jewelry. ठीक बेटे. तो हमें पता है, वी नो, हमने उस दिन किया बेटे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है? आउटर मोस्ट जोन का. क्योंकि उसमें क्या होती है? कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन का मतलब है जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, ठीक है, और हीट एंड लाइट कंप्लीटली मिले, तो दैट इज अ कंप्लीट कंबशन इज गोइंग ऑन. अब ये गोल्ड स्मिथ कौन सा जोन लेगा? अब गोल्ड है, हार्ड मेटल है, तो इट विल यूज विच जोन? इट विल यूज द आउटर मोस्ट जोन टू ब्लो एयर थ्रू द ब्लो पाइप इनटू द फ्लेम. ठीक. What will it do? It will help in the rapid combustion of unburned fuel and hence make flame hotter, sufficient to melt gold and silver. Okay. When air is blow, जब इस zone में, the outermost zone we have done that day, outermost zone, this was our unburned. ठीक है. This was our candle. This outermost blue color का, यहाँ पे इसने ब्लो पाइप करी मेल्ट करने के लिए. एक तो कंप्लीट कंबशन हो रही है, जब खुद भी ब्लो करेगा तो उसको और ऑक्सीजन मिलेगी. जो अनबर्न्ड होगी कुछ भी तो और कंबशन बहुत जल्दी होगी. तो जो अनबर्न्ड फ्यूल है वो भी अंडरगो कंबशन एंड मेक द फ्लेम हॉटर एंड सफिशिएंट टू मेल्ट द गोल्ड एंड सिल्वर. ओके बेटे. सो दैट इज व्हाई the goldsmith use the outermost, that is blue zone, or it is also known as non-luminous zone, and the middle zone we have already done, it is a luminous one. Okay. Okay bete. Now come to the next topic of your chapter. What are fuels? What are fuel? Fuel is any material which is burned. When it is burned, we are getting what? We are getting heat and light. ठीक है बेटे. So what is now fuel? You can define yourself also the bete. The material which are burned to produce large amount of heat energy. ठीक. The material which are burned to produce take large amount of energy. So these fuels are classified into solid, like coal we have done, liquid like petrol, kerosene, and gaseous like LPG, liquefied petroleum gas is gaseous fuel. So fuel you can classify into solid. ठीक है बेटे. So solid fuels are fuel which exist in the solid state at room temperature, and liquid fuel exists as liquid, and gaseous fuels exist as gaseous. तो इसमें मुझे नेम itself suggest कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. और जो फ्यूल जैसे कि कोल विच इज अ सॉलिड वन, कोक, पेट्रोल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, डीजल, कैरोसिन ऑयल. ठीक है. देन मीथेन गैस, बायोगैस, so many examples.
Like you should write CNG, compressed natural gas, liquefied petroleum gas. You can write this kind of examples. Okay. Even you can mention the biogas, that is methane one. So the fuels are being classified into solid, liquid and gas. अब बेटे सारे फ्यूल्स की एक जैसी हीट प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ फ्यूल ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फ्यूल्स कम हीट प्रोड्यूस करते हैं. सो इस कितने अमाउंट ऑफ हीट कोई फ्यूल प्रोड्यूस करता है वो हम डिफाइन करते हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू में. ठीक है. So now next is what is calorific value of the fuel. So next is calorific value. Each and every fuel doesn't give same kind of energy. Some of the fuel give more energy and some of the fuel बेटे give less energy. कोई बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं और कोई कम एनर्जी देते हैं. ठीक है. The amount of heat produced, you can write the amount of heat produced by complete combustion of 1 kg of the fuel. ठीक. अब कई 1 kg को बर्न करें तो हमें बहुत ज्यादा हीट मिलेगी और कई बारी 1 kg को बर्न करें तो हमें लेस हीट मिलेगी. तो डिपेंडिंग कौन सी ज्यादा हीट दे रहा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और कौन सी कम दे रहा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है. ठीक. सो आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल लाइक काउ डंग केक्स, जो थापियां थपते हैं काउ डंग केक्स, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है. दे आर नॉट गिविंग अस सो मच ऑफ द हीट. अगर उसको 1 kg को हम बर्न करते हैं तो 600 से 8000 तक उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आती है. ठीक है. हीट एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जाउल्स, किलो जाउल्स. तो ये यूनिट लिया हमने किलो जाउल्स, मतलब कितनी हीट रिलीज होती है जब आप 1 किलोग्राम के फ्यूल को बर्न कर रहे हो. तो हम हीट की जो यूनिट्स हैं वो जाउल्स, किलो जाउल्स, कैलोरीज, सो मेनी यूनिट्स. अब ये हमने स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ले लिया बेटे, दैट इज किलो जाउल्स. तो इतने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है जब आप 1 kg ऑफ काउ डंग केक को बर्न कर रहे हो, जैसे कि वुड को बर्न करते हो. अब वुड को जब बर्न करते हैं, अगर मैं 1 kg वुड बर्न करूं तो मुझे कितने किलो जाउल्स ऑफ हीट मिलेगी, दैट इज 17,000 to 22,000. ठीक है. सो दिस यू मस्ट रिमेंबर इन द एमसीक्यू पार्ट. लाइक कोल को बर्न करोगे, कोल. ठीक है. कोल में वुड से ज्यादा कार्बन कंटेंट है, तो कार्बन कंटेंट बढ़ गया तो इट विल गिव यू हीट 25,000 to 33,000. आप देख रहे हो ये हम सारे सॉलिड फ्यूल्स लिख रहे हैं. ठीक है. जैसे जैसे हम गैसियस फ्यूल की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जानी है. ठीक. नाउ बायोगैस हमें जो देती है दैट इज 35,000 to 40,000. और जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ज्यादा हमें जो कोई फ्यूल है वो हमें क्या देगा, एनर्जी. लाइक बायोगैस विल गिव यू 35,000 to 40,000. ओके बेटे, 35,000 to 40,000. Then come diesel. Diesel is giving you up to 45,000.
this will giving you up to किलो जाउल्स पर केजी में. रिमेंबर 1 केजी में कितने किलो जाउल्स ऑफ हीट रिलीज होती है. देन केरोसिन ऑयल इज गिविंग यू 48,000 of energy. That is kerosene oil. Then natural gas, it is giving to 32 to 50,000. Natural gas, that is methane. That is 32,000 to 40,000. जितना प्योर करते जाएंगे, बाकी बाई प्रोडक्ट रिमूव करते जाएंगे, it will give us more of the energy. ठीक. Then petrol, it is 50,000. So is with the CNG. Petrol and CNG both are giving us energy of 50,000. Petrol and CNG. Then LPG 55,000. और सबसे ज्यादा we are trying to use hydrogen as a fuel nowadays. Hydrogen as a fuel, अगर हम successful हो गए तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी देता है. That is 1,50,000. अगर 1 kg का फ्यूल हम बर्न करते हैं बेटे तो हमें इतनी किलो जाउल्स ऑफ हीट रिलीज होती है. ओके बेटे, सबसे ज्यादा हीट हमें हाइड्रोजन से मिली, देन उससे कम एलपीजी में से. तो दैट इज व्हाई हाइड्रोजन इकोनॉमी अब राइज हो रही है धीरे धीरे. दे आर साइंटिस्ट आर सर्चिंग ओवर इट. मैम हाइड्रोजन कहाँ यूज होती है? मैंने तो कहीं नहीं सुना हाइड्रोजन का. क्या हाइड्रोजन वो तो अभी कहीं यूज नहीं होती. नहीं बेटे, हाइड्रोजन इकोनॉमी आजकल जो रॉकेट्स वगैरह में ये यूज होना शुरू हो गया है धीरे धीरे. मगर इसको ये है कि इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते. द थिंग इज दैट अदरवाइज अगर इसको स्टोर करके रख लें तो इट इज वेरी गुड फ्यूल. यू विल बी स्टडीइंग इन द हायर स्टैंडर्ड. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स बन गए अब, जिनकी हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है. हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनको स्टोर करना बहुत मुश्किल है. तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी जैसे जैसे विल यूज इट. बट अगर हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज किया जाए तो इट इज गिविंग यू दिस मच ऑफ द एनर्जी. ओके बेटे, फिर सबकी हम जगह ले लेगी हाइड्रोजन. मगर इसका हम टेक्नोलॉजी मिलेगी तो can't be stored. हाइड्रोजन गैस के पास थोड़ी सी भी मैस्टिक आ जाएगी तो इट विल बर्न विद पॉप साउंड ना. यू हैव डन इन जूनियर स्टैंडर्ड. तो दैट इज व्हाई तो जो आ रही है स्टोरेज की इसकी वो आ रही है. अगर ऐसा कुछ बन जाए, मान लो हमने गैस में हाइड्रोजन फ्यूल टैंक लगाया हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ आ गया तो इट विल बी हाईली कंबस्टिबल. तो इट इज एट अ ग्रेट रिस्क. So that is dangerous why, भी है. हाँ रिस्क है ना. That is why the scientists are doing some kind of research. Hope so you will be the future scientist and bring hydrogen economy in our country. ठीक है. But hydrogen as a fuel is very good. It is producing so much of energy, and if it is successful, it can be used to run automobiles. So it can replace the petrols and diesels and all the stuff. Okay, so it is not a convenient to store, but storage की या transportation की बहुत difficulty है इसकी. अगर वो difficulty overcome हो जाए तो it is very good fuel. So what is the characteristics of a good fuel? अच्छा fuel क्या है? हमें सस्ता मिल जाए जो, है ना, जो costly ना हो वो good fuel है. उसके साथ उसकी calorific value भी ज्यादा हो और उसको स्टोर करना भी हमारे लिए इजी हो, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी हमारे लिए इजी हो. ये सारी हम अच्छी उसकी आइडियल फ्यूल की क्वालिटी बोलेंगे. तो इट शुड बी फेयरली चीप
Ideal fuel, characteristics of ideal fuel you can write, bete. It should be fairly cheap and readily available. Okay. So the ideal fuel must be fairly cheap and easily available. जो फ्यूल हमें चीप मिल जाए एंड इट विल बी फेयरली अवेलेबल, मीन्स जहां मर्जी इजीली अवेलेबल हो जाए, दैट इज आइडियल फ्यूल फॉर अस. ठीक, इट शुड बी easy to handle, and even we can transport easily. That is why we are not using hydrogen as a fuel. Abhi, you have asked me that, ma'am, it has very high calorific value, that is 1,50,000. Even if we are not dealing with the hydrogen economy, as bete, it is having high calorific value, but the thing is that it is not easy to handle and a transport thing again. You will use in the vehicles and all, it can catch fire easily and burn with a pop sound. Okay? Okay, bete. So yes, it has other quality which is in the ideal fuel, that is high calorific value. अगर हम 1 kg of कोई फ्यूल बर्न करते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो उतना ही अमाउंट ऑफ फ्यूल वो बर्न करते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, तो वी नीड दैट फ्यूल इन द मच लार्ज क्वांटिटी. लाइक काउ डंग वी हैव डन हैज अ लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सो वी नीड काउ डंग more as compared to LPGs, ठीक है, which have 50,000 petrol, like 45,000 calorific value. They have, we need in the lesser quantity, and same we need more quantity if the calorific value is more. ठीक है. So next is that it shouldn't produce any harmful, shouldn't produce any harmful and poisonous gases or products. The byproducts are poisonous basically. Like अगर आपका fuel complete combustion नहीं जाता, it will give you carbon monoxide, and if it will give you carbon monoxide, it will certainly combine with your hemoglobin and forming carboxyhemoglobin, that is a poisonous substance. ठीक है. तो आपने ना पुराने जमाने में देखा होगा जब वो कोल एज ए फ्यूल सर्दियों में यूज करते थे एंड योर रूम्स वर क्लोज्ड एंड ओवर, जब वो कोल की इनकम्प्लीट कंबशन होती थी, यूज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोक्साइड, है ना. तो कार्बन मोनोक्साइड आपके ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन के साथ जाके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो हमारे ब्लड के लिए बहुत पॉइजनस है. ठीक है. तो ऐसे फ्यूल्स जो पॉइजनस सब्सटेंस, अगर उनकी कंप्लीट कंबशन ना हो और ऐसे सब्सटेंस मिले, दैट विल बी वेरी मच डेंजरस टू अवर हेल्थ. ठीक है. नाउ द गुड फ्यूल इज दैट इट शुडंट प्रोड्यूस एनी रेजिड्यू और एश. लाइक घर पे जब हम काउ डंग वगैरह यूज करते थे तो इट विल प्रोड्यूस एश और रेजिड्यू, मगर आजकल एलपीजी यूज होती हैं तो उसमें कोई हमें एश नहीं नजर आती. This is a gaseous fuel and it will burn and give you heat only. ठीक है. So good fuel doesn't produce residue और ash. ठीक है. जैसे कि हमारी एलपीजी, हमारी सीएनजी, ये रेजिड्यू नहीं प्रोड्यूस करती. अगर हम देखे जाए काउ डंग वगैरह जो भी सारे वुड है चाहे कोल है, ये सारा कुछ ये प्रोड्यूस करते हैं, तो इट इज नॉट गुड फ्यूल फॉर अस. ठीक है. सो गुड फ्यूल मस्ट बर्न स्मूथली. ये नहीं कभी बर्न, यू विल कंप्लीट योर लाइन योरसेल्फ. ओके, दिस इज द हिंट आई एम राइटिंग. सो इट बर्न स्मूथली बेटे. यस सक्षम. यस बेटे. मैम कंबशन, मैम जो कंबशन है फ्लेम
लेकिन Your voice is not completely audible. Can you write in the chat box, bete? Try to speak again. Can you write करने bete? Yes, yes. क्वेश्चन करने हैं। Your voice is not coming properly, bete. Just write in the chat box. Yes, Mansvi. मैम सोलर एनर्जी यूज हो सकती है? Yes, solar energy भी नहीं यूज कर सकते. Yes, वो बर्न नहीं करता बेटे. इट इज कम, हम ये नहीं कह सकते कि वो बर्न कर रहा है. दैट इज नॉट अ फ्यूल. आग थोड़ी ना लगेगी. उसको यूज, एनर्जी को यूज कर सकते हैं हम आग लगाने के लिए. ठीक है. अब सन में ऑलरेडी न्यूक्लियर एक्शंस हो रही हैं. ऑलरेडी न्यूक्लियर एक्शंस हो रही हैं तो उससे हमें एनर्जी मिल रही है. तो उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी वहां पे हो रहे हैं. ये थोड़ी ना सन को हम खुद आग लगाएंगे. अभी तो वो सोलर पैनल्स की जगह यूज होती है ना सिर्फ. सोलर पैनल्स को हीट करती है बेटे. देन वी आर गेटिंग द अल्टीमेटली कौन एनर्जी दे रहा है? सन ही तो दे रहा है. यस. ओके. अच्छा, अब देखो आफ्टर दिस, अगर आपकी फ्यूल का प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर ही ना हो, मान लो कि जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वो बहुत जल्दी फायर कैच करता है, तो इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर भी होगा, इट विल कैच फायर एट द रूम टेम्परेचर और इससे डिस्ट्रक्शन हो सकती है. ठीक है. तो वन मोर पॉइंट यू कैन ऐड, इट मस्ट हैव proper ignition temperature. Means the temperature must not be too low. अगर बहुत कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी फायर कैच कर जाएगी. तो फायर, जो फायर से डिस्ट्रक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है. इट शुड नॉट have very low ignition temperature. So that it can catches fire at RT. RT means room temperature. ठीक है. अब बहुत ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वो रूम टेम्परेचर पे ही, जैसे अगर मान लो किसी कोई 30 डिग्री पे या 25 डिग्री पे ही हीट कैच करेगा तो गर्मियों में तो यहाँ ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. इतना भी टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए बेटे कि आपकी जो फ्यूल है वो फायर कैच इजली कर ले. सो यू नो द बर्निंग ऑफ फ्यूल actually leads to the substance which are harmful to us. Like हम बात करते हैं, you will write afterwards, समझो इस बात को. जैसे मैंने कोल की बात करी, तो अगर इसकी इनकम्प्लीट कंबशन हुई तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला. इट इज वेरी डेंजरस फॉर यू. वैसे ही जब आप व्हीकल्स रन करते हो या फैक्ट्रीज हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस देती हैं. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन होके एसिड बनाते हैं, जो एसिडिक रेन देती हैं हमें. इन द सेम वे हम फ्यूल्स बर्न करते हैं तो हमें एंड प्रोडक्ट कंप्लीट कंबशन का तो पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गिविंग यू हीट एंड लाइट. अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी. ठीक है. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, आपको पता है इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, इससे हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है. तो एवरी फ्यूल जो भी हम बर्न करते हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, दे आर डेंजरस टू अस. ओके बेटे. So write down the next. Burning of fuel leads to harmful product.
चलो we will continue tomorrow बेटे the same topic.